क्योंकि बहस कराना हमारा मुद्दा नहीं है। इस पर जो अपनी बात रखना चाहें दोनों तरफ से, बीजेपी और डीएमके के नेताओं के पास आपको लेके चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बयान के पीछे की मंशा क्या है। सलीम धरणीधरन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं डीएमके के। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं सर। ये जो कमेंट पूरा किया उदयनिधि स्टालिन ने, इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। हिंदू फोबिक की तरह से, हिंदुत्व फोबिक की तरह से इस बयान को देखा जा रहा है। इस बयान को हिंदू विरोधी के तौर पर पेश किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। Sanatan Dharma has nothing to do with Hinduism. DMK Hindu is not against Hindus. We are against the caste system. We want to break the shackles of caste system. And since Periyar, Anna, Kalaignar, all present Chief Minister, and now Udayanidhi, they have all spoken against caste system and against Sanatan Dharma because that forms the basis for the caste system. And we are against the caste system because even the constitution says there has to be equality, and caste system does deprives human beings of dignity and deprives them of their basic fundamental rights enshrined in the constitution. Even Ambedkar has written vehemently against Sanatan Dharma. Sanatan Dharma implies that this dharma is that based on birth, people are hierarchically divided into caste systems. And if Sanatan Dharma is not, what I'm trying to say is, why aren't we talking about giving access to OBCs, SCs, and STs to worship in temples, right? In Tamil Nadu, all people belonging to all castes can become priests. आप दो बातें कह रहे हैं, इसमें किसी को दो राय नहीं है कि जो जाति प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए। इक्वालिटी की बात जो आप कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस तरीके से इस बयान को पेश किया गया, आपको नहीं लगता पॉलिटिकली भी इस स्टेटमेंट से तमिलनाडु में कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ये शायद पता नहीं, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, वहां पर आपके जो एलाइज हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, उनके लिए तो आपने मुश्किल खड़ी कर दी है। उनसे पूछा जा रहा है इस पर बयान देने के लिए। नहीं, हिंदी स्टेट्स में भी लोगों को इक्वालिटी चाहिए ना, उनको भी डिग्निटी चाहिए ना। यूपी में हम देखते हैं कैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं, हाउ आर पीपल ट्रीटेड। वी आर सीइंग इन यूपी हाउ पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, हाउ SCs and how Dalits and STs and OBCs are being treated, deprived of their rights. We are speaking for them. We are speaking on their behalf. What has Ambedkar said about Sanatan Dharma? He vehemently opposed it. See, we are also saying social justice for India is very important. Upliftment for all is important. But as long as there is caste system, right? As long as women are not being given equal rights, then there is no social justice. Then there is no equal growth and development for all. लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कोरोना, मच्छर, मलेरिया उन्मूलन कर देना चाहिए, इरेडिकेट कर देना चाहिए, वो शब्द शायद इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए थे? Do you regret using those words? Because the BJP leaders are calling it, they are saying that this is a call for genocide against Hindus. It absolutely makes no sense. It's rubbish. He only calls for eradication of Sanatan Dharma because it propagates caste system. So where is genocide here? In fact, BJP is a party which is creating a situation where there could be genocide of a minority community. In Mizoram, in Manipur, there has been a genocide-like situation, and the Prime Minister kept mum. No confidence motion लेके आना था उनको बात करवाने के लिए. Only because no confidence motion was brought about, he came and spoke on Manipur. वरना उसके बारे में कुछ नहीं बात किया. अंत में आपसे जाने से पहले ये पूछना चाहूंगा, तमिलनाडु में अन्नामलाई एक पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से। जो आपने बयान दिया है या उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है, उससे आपको लगता है कि बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में मदद कर दी है आपने? बीजेपी बिना अलायंस तमिलनाडु में खड़े होंगे, उनको वोट परसेंटेज नोटा के नीचे ही होगा। वो यात्रा का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु हमेशा
वो इक्वल सोसाइटी रह चुके रहेगा. There is no place for communal hatred in Tamil Nadu. We believe in development and mutual respect for all people, all societies and all communities. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए. जो सफाई आप दे रहे हैं कि बात इक्वालिटी की थी, पर बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है, से चलते हैं. भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सिन्हा साहब, आप भी सुन रहे थे किस तरीके से अभी डीएमके के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि ये सनातन हिंदुत्व के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं. बीजेपी जो इसको जेनोसाइड और बाकी चीजों का नाम देके कोशिश कर रही है, बात उसकी नहीं है. हम बात कर रहे हैं समान अधिकार की. ये सनातन धर्म में जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है, उसकी खिलाफत है. देखिए, जो भी पार्टी संसदीय जनतंत्र में है, उसे ऐसे किसी भाषा का उपयोग करने का संवैधानिक और नैतिक दोनों अधिकार नहीं है जिस भाषा से समाज बिखरता है, टूटता है, उत्तेजना पैदा होती है और हिंसा की बात की जाती है. स्टालिन के सुपुत्र के द्वारा की गई बात पूरी तरह से हिंसात्मक है. उन्होंने कीड़े मकोड़े की तरह मार देने की बात कही है. सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया के कीड़े से तुलना करना, यदि हिंसात्मक शब्द नहीं है तो और हिंसात्मक शब्द क्या होता है. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे अपने ज्ञान की वृद्धि करें. सनातन धर्म का तात्पर्य यदि वे नहीं समझते हैं तो मैं डीएमके के साथियों को समझा देना चाहता हूं. अगस्त्य मुनि जिन्होंने तमिल भाषा की शुरुआत की, और अगस्त्य मुनि के बारे में जो हमारी धर्मशास्त्रों में प्रमाण है, साक्षात भगवान शिव ने उन्हें तमिल भाषा सिखाया था. वह ओल्ड तमिल की में जो संस्कृति के आयाम और दर्शन है, अगस्त्य मुनि जी ने का जो दर्शन है, अगस्त्य मुनि का एक और जो योगदान है जिसे डीएमके के साथियों को सुनना चाहिए और इंडिया जो घमंडिया गठबंधन के लोगों को जानना चाहिए कि दक्षिण और उत्तर के बीच में अगस्त्य मुनि दार्शनिक स्तर पर, गतिविधियों के स्तर पर एक सेतु का काम किया. यह प्राचीन इतिहास का सिर्फ वो एक खारिज नहीं कर रहे हैं, उस पर हिंसात्मक प्रहार कर रहे हैं. यह बयान स्वयं तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति, तमिल विरासत पर एक बड़ा आघात. सर, लेकिन क्या हम ये मान लें कि जिस तरीके से इसको जोड़ के हिंदुत्व सनातन के खिलाफ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम सनातन धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, क्या इक्वालिटी की जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? क्या अभी भी छुआछूत, जाति प्रथा से अभी भी परेशानी नहीं है कई जगह पर लोगों को? देखिए, इसी बात को जो जिन शब्दों में आप बोल रहे हैं उन्हीं शब्दों में बोलते तो ये झगड़े नहीं होते. सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार नहीं किया है. भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पर्यायवाची नहीं है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्यायवाची है, ना ही कोई व्यक्ति इसका पर्यायवाची हो सकता है. सनातन धर्म का इतिहास एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और वैश्विक परिवेश में देखना चाहिए. और यह अकेला सनातन धर्म है जो ब्रह्मांडीय चेतना की बात करता है. ब्रह्मांडीय चेतना का तात्पर्य होता है बाकी सभी सभ्यताओं और धर्मों में जीवों के बीच समानता, सहिष्णुता की बात होती है. सनातन धर्म जड़ और चेतन, यानी जो जीवित हैं, जो गैर जीवित हैं, यानी पहाड़ पत्थर के बीच और मनुष्य जीवित के बीच में एक संबंध की बात करता है. इसे सनातन धर्म को जानने से पहले दूसरा सनातन धर्म का अवयव क्या है, यह उपनिषद का जो एक दो शब्दों का सिद्धांत है, नेति नेति, दिस इज नॉट, दैट इज नॉट, यह भी नहीं वह भी नहीं, यानी कंटेस्टेशन, प्रतिकार. और उसी कंटेस्टेशन, नीति नीति के कारण भारत में विविधता है, बहुलता है और विभिन्न मतों का, दर्शनों का और दार्शनिकों का आविर्भाव सहज तरीके से होता है. इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म पर सवाल करने से पहले सनातन धर्म को समझ लें, सीख लें. और अस्पृश्यता सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, जाति प्रथा सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है. पर इससे भी नकारा नहीं जा सकता राकेश जी कि ये हिस्सा ना हो या ना हम चाहें ना चाहें, पर एक यथास्थिति तो है, मतलब एक सच्चाई तो ये भी है. लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी तमिलनाडु में भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है, एक यात्रा वहां पर चल रही है और 2024 का चुनाव भी है. इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया. उन्होंने सवाल सिर्फ डीएमके से नहीं कांग्रेस से भी पूछे हैं. तो क्या बीजेपी को एक राजनीतिक फुलटॉस मिल गया है इसमें?
क्या ये एक सामान्य बयान है? क्या इस बयान को यूं ही छोड़ा जा सकता है? सनातन धर्म की सहिष्णुता, सनातन धर्म की विरासत, सनातन धर्म के इतिहास और सनातन धर्म के का वर्तमान और भविष्य क्या सवालों के घेरे में नहीं लाया गया? और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका पर्यायवाची नहीं है। इस देश के करोड़ों लोग जो आज हैं और करोड़ों लोग जो नहीं हैं, और जो करोड़ों लोग भविष्य में आएंगे यानी पीढ़ियां आएंगी, उन सबको सवाल किया गया। उन सब पर इतनी अभद्र और इतनी हिंसात्मक की गई है, फांसीवादी बयान दिया गया और कांग्रेस पार्टी चुप है। ये जो गठबंधन है, जो इंडिया नहीं घमंडिया, ये इसलिए इसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। नाम इंडिया का लिया है, काम वो कर रहे हैं जिससे भारत टूट जाए, भारत के टुकड़े हो जाए। ये भारत को जोड़ने की का तात्पर्य भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बताइए, ये भारत को तोड़ने वाली बात है कि नहीं? जो अगस्त मुनि ने किया उसके प्रतिकूल वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब जो अगुवा बन रहे हैं भारत की एकता के, वे इसका जवाब दें। वे निंदा करने की स्थिति में नहीं है। यानी वोट के लिए, सत्ता के लिए आप देश को तोड़ने वाली बयान, तोड़ने वाले लोगों के साथ मौन रहकर समझौता करने के लिए तैयार है। राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी की बात इस मुद्दे पर रखने के लिए। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर बन गया है और खास तौर से अब कम से कम तमिलनाडु में भी, और जैसे मैंने कहा हिंदी भाषी राज्यों में इसका जरूर इस्तेमाल भरपूर किया जाएगा।